YouTube channel. So previously we were doing the questions of Laplace transform in the series of previous year questions for mathematical physics for upcoming CSIR नेट एग्जाम. So इस वाले क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं which is numerical analysis. Under numerical analysis, the first topic is error analysis. So I'll do the previous year questions of CSI net for error analysis in two parts. The first part we are going to do today, and then in next part we will do it tomorrow. So let's start. ये हाँ आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है. Radioactive decay of certain material satisfies Poisson statistics. So first keyword is Poisson statistics with a mean rate of lambda per second. What should be the minimum duration of counting so that the relative error is less than 1%. So हमको अब इसमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या what should be the minimum duration of counting so that the relative error is less than 1%. तो हम इसको कैसे करेंगे. So what is given is lambda. Let me do this. इसकी width को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं. Yes. So lambda is what is lambda? It is number of decays in unit time as per the definition of lambda. Now t is minimum duration of time. Will let t is minimum duration of time. Now mean number of counts कितने होंगे. यूनिट नंबर ऑफ डिकेस को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे मिनिमम टाइम से सो हमको मिनिमम नंबर ऑफ काउंट्स मिल जाएंगे. सो म्यू इज इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ काउंट्स हो जाएंगे लैम्बडा इनटू टी. इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि एक एप्पल की वैल्यू कितनी है और वी हैव 8 एप्पल्स और 10 एप्पल्स. अगर एक एप्पल की वैल्यू अगर 2 रुपीज है तो 8 एप्पल्स की कितनी होगी 2 into 8 which is 16. So that's why I have multiplied it. Now हमको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है what is the value of t minimum for relative error. So we have got the value of mu in Poisson bracket in Poisson statistics, particularly Poisson statistics. एक होती Gaussian statistics, एक होती Poisson statistics. So Poisson statistics में जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू म्यू. सो व्हाट वी गेट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू which is equal to root of lambda t. Now relative error की जो वैल्यू है वो होगी lambda by mu which is equal to, this is the formula in Poisson statistics, that's why I am writing it directly. और ये हो जाएगा 1 upon root of lambda by t. So what is given is कि जो relative error है that should be less than relative error 1%. So this should be less than 0.01. Now squaring both the sides, I am writing here, squaring both the sides we get 1 upon lambda t into 10 की power minus 4. Now if I inverse both the sides, so what I'll get lambda t, but जो लेस देन का साइन है वो इक्वल्स के साइन में ग्रेटर देन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और दिस विल बिकम 10 to the power 4. जैसे कि अगर 1/2 दे रखा है और दिस इज और 1/2 दे रखा है फॉर एग्जांपल
विच इज ग्रेटर देन 1/3. सो व्हाट, अगर हम इसका इन्वर्स को चेंज कर देंगे तो व्हाट इट गिव्स इज, मैंने उल्टा लिख दिया, आई हैव टू, ये इक्वलिटी सही नहीं है. 1/1, लेट ओनली टेक दिस एज, अगर ये 1/3 है और ये 1/2 है, so 1/2 is clearly greater than, so I have written it previously, so leave it for today. So lambda t is greater than 10 to the power 4, so what we'll get is the t is should be greater than, or should be greater than 10 to the power 4 by lambda. So option B is correct. This was a tricky question, not to be done in exam, but this is the solution for this exam, for this question. Let's move to the next question. So we have question number 2 on our screen as given. Now इस वाले क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है कि हमको अप्रोक्सीमेशन दे रखा है और 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमको इस अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है. एज लॉन्ग एज थीटा इज लेस देन, थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, व्हाट हियर इज, यहाँ पे क्या लिख रखा है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ कि पाई जो है वो इक्विवेलेंट है 180 डिग्री का, पाई रेडियन, और 1 जो रेडियन है दैट इज इक्वल टू 57.29 डिग्रीज. नाउ अगर 3 डेसिमल प्लेसेस तक यानी कि जो cos थीटा -1 है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम रहना चाहिए. इसका क्या मतलब है कि 4th डेसिमल प्लेस में जाके वो हो सकता है कि चेंज भी हो. सो फॉर दैट दिस इनइक्वालिटी शुड होल्ड. व्हाई? क्योंकि अगर 3rd डेसिमल प्लेस में कोई भी वैल्यू जैसे चेंज होगी, इस यहाँ पे अगर मिनिमम वैल्यू भी चेंज होगी तो वो 1 होगी, और अगर हम इसका हाफ करेंगे यानी कि 0.01 का अगर हम हाफ करेंगे सो विल गेट 0.0005. सो अगर इससे ज़्यादा होगी यानी कि अगर हम इसको 0.006 वैल्यू आ जाएगी, सो वो राउंड ऑफ होकर 0.001 आ जाएगी, और अगर 0.004 हो जाएगा तो वो राउंड ऑफ होके 0.0001 हो जाएगा. सो बोथ द केसेस, एक में वैल्यू चेंज नहीं हो रही है और मिनिमम भी चेंज होने के लिए 3rd डेसिमल प्लेस में 0.0005 से वैल्यू ज़्यादा ही होनी चाहिए 4th डेसिमल प्लेस के लिए, तो उसको हम राउंड ऑफ करके 0.001 लिख पाएंगे, और 0.001 इज चेंज इन द 3rd डेसिमल प्लेस. सो 3rd डेसिमल प्लेस में चेंज होने के लिए मिनिमम भी 0.005 यानी 4th डेसिमल प्लेस की वैल्यू 5 से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए, तभी हम इसको सोल्व कर पाएंगे. सो आई होप यू गॉट दिस ऑल. Let me remove this. Now so for this equality we'll use the basic thing of error analysis, which is the first order approximation. So cos थीटा का अगर हम फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे पहले से -1 दे रखा है. दिस शुड बी ग्रेटर देन 0.0005. सो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा. what we are left is 1 माइनस 1 तो चला गया, यहाँ बचेगा थीटा स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 0.0005. 2 को उधर भेज देंगे तो थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 0.001, और अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये रेडियन में आएगी. रिमेंबर रेडियन में आएगी, क्योंकि हम डिग्री में भी इसको बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन हमारा डिग्री में दे रखा है. सो दिस शुड बी 0.001.
which is approximately equal to 0.03162. If you convert this into the degree, then we have to multiply it by. So 1 degree is equal to 57.29 degree. 1 radian is equal to 57.29 degree. So 0.3162 radian should be equal to 0.3162 into 57.29 degrees. So what this is equal to is, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.81 degree. So option B is correct. This is how we are going to do this question. Now इसमें बस बेसिक कंसेप्ट याद रखने की बात ये थी कि थर्ड डेसिमल प्लेस पे वैल्यू जब भी चेंज होगी जब फोर्थ डेसिमल प्लेस पे की जो वैल्यू है वो 5 से एक ज्यादा होगी, यानी 6 होगी तो राउंड ऑफ होके 0.001 आ जाएगा, यानी थर्ड डेसिमल प्लेस में एक का चेंज आ जाएगा. सो हमको लीस्ट वैल्यू चाहिए थी तो लीस्ट वैल्यू वो 5 ही हो सकती थी. दैट्स व्हाई आई हैव इक्वेटेड हियर. यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लग रहा था और उसको मैंने इक्वल्स टू में इसलिए कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू भी यही हो सकती है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बिकॉज हमको वाइडेस्ट रेंज पूछ रखी है. अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 1.81 है तो 1.81 से तो 1.228 छोटा है, तो ये भी ऑप्शन तो सही है, बट क्योंकि हमको थीटा एज लॉन्गेस्ट पूछ रखा है इसलिए हमने इसको इक्वल्स टू में कन्वर्ट कर दिया कि जब तक थीटा स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू इसके इक्वल भी होगी तब तक भी चल जाएगा, मगर इससे ज्यादा होगी तो फिर वो थर्ड डेसिमल प्लेस को डिस्टर्ब करेगा. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन इट हियर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़े हार्ड क्वेश्चन है आज, बट व्हाट कैन आई डू, ये क्वेश्चन इंट्रिंसिकली हार्ड है. दैट्स व्हाई. सो क्वेश्चन नंबर 3 जून 2015 में आया था. विस्कोसिटी का एक फॉर्मूला दे रखा है, एल और बी में एक्यूरेटली मेजर कर रखा है तो कोई एरर नहीं है. बेसिकली साइन का मतलब यही है. पी का आरएमएस एरर हमको पहले से दे रखा है 1%. द वैल्यू ए हैज एन इंडिपेंडेंट आरएमएस एरर अगेन 3%. द आरएमएस एरर ऑफ विस्कोसिटी इज क्लोजेस्ट टू. इंडिपेंडेंट एरर दे रखा है और हमको एक फॉर्मूले में विस्कोसिटी का एरर फाइंड आउट करना है, तो हमको प्रोपेगेशन ऑफ एरर यूज करना पड़ेगा. प्रोपेगेशन ऑफ एरर इंस्टेड ऑफ रेगुलर एरर फॉर्मूला, हमको प्रोपेगेशन ऑफ एरर के फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे. प्रोपेगेशन ऑफ एरर क्या होता है कि कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज होती है, जैसे आई है, वी है, तो उनमें जो एरर होता है वो मेजर्ड एरर होता है. प्रोपेगेशन ऑफ एरर क्या होता है कि मेजर्ड क्वांटिटी में नहीं और डिराइव्ड क्वांटिटी में. जैसे विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, उसमें कितना एरर होगा तो हमको प्रोपेगेशन ऑफ एरर वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. सो बाय दैट फॉर्मूला what we'll get is, this is similar to the formulas of error. Del n upon n का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ जाएगा डेल पी अपॉन पी का स्क्वायर प्लस, क्योंकि पावर ए में 4 है सो यहाँ जाएगा 4 डेल ए अपॉन ए का स्क्वायर. और वी आर गेटिंग हियर इज, हम जानते हैं डेल पी अपॉन पी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.01, क्योंकि 1% का एरर है, का स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0.001. सो पी का आरएमएस एरर दे रखा है. सो यू मस्ट बी आस्किंग सर आपने रूट तो किया नहीं, रूट मीन स्क्वायर. सो क्योंकि पी की वैल्यू ही एक दे रखी है तो उसका स्क्वायर मीन करेंगे तो हमको सेम ही वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए मैं, क्योंकि यहाँ पे डेल पी अपॉन पी का स्क्वायर ही चाहिए इसलिए मैं डायरेक्टली वही लिख रहा हूँ. और सिमिलरली अगर हम डेल ए अपॉन ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, सो व्हाट विल गेट इज 4 टाइम्स. सो व्हाट विल गेट इज 4 इंटू 0.03, क्योंकि 3% का एरर है इसका स्क्वायर. सो ये मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया है, 2 0 आएंगे तो 2 0 और फिर 2. यस दिस इज करेक्ट. और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो व्हाट विल गेट इज 0. अब 12 आ जाएगा और 4 0 आ जाएंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 114. तो 3 डिजिट कवर हो गई, 4 डिजिट में से 3 कवर हो गई तो आ जाएगा 0.144. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट दिस. नाउ डेल एन अपॉन एन का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, इन दोनों को सम करना. अगर हम इन दोनों को सम करेंगे
So what we'll get is 0.0145. Now अगर हम यहाँ से del n upon n की वैल्यू निकालेंगे, so what we'll get is del n upon n into 100 is equal to root of 0.0145 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमको परसेंटेज एरर निकालना है और आरएमएस एरर का यहाँ पे कोई सीन नहीं बनेगा, क्योंकि एन की मल्टीपल वैल्यूज ने दे रखी है तो आरएमएस एरर और रिलेटिव एरर एक ही हो जाएगा। अदरवाइज तो स्क्वायर करके उन सबको ऐड करके स्क्वायर रूट लेना पड़ता। सो एक वैल्यू होने के कारण ही इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 0.1204 इंटू 100%, यहाँ पे परसेंट आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 12.04%, which is close to option C. So option C is correct. Let's move to the best question for today, which is question number 4. So ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन शेष आया दिसंबर 2015 में आया था। लेट मी टेक सम मोर स्पेस। सो यहाँ पे जो सबसे बेसिक लॉजिक काम करता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दिस, आई कुडंट गेट दिस क्वेश्चन क्योंकि इसमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, आई विल टेल यू। और ये आज का बेस्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये मुझे नहीं आया। सिंपल। सो व्हाट वी नो इज कि जो अनसर्टेनिटी होती है, यू रीड दिस क्वेश्चन, आई विल सॉल्व दिस। जो अनसर्टेनिटी होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है लीस्ट काउंट यानी लीस्ट मेजर्ड वैल्यू अपॉन रूट ऑफ एन टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स फॉर एनी इंस्ट्रूमेंटल एरर। सो फॉर ए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इस ए वाले डेटा सेट के लिए जो डेल होगा, डेल ए की वैल्यू 1 हो जाएगी कि रेजोल्यूशन है उसका 1 मिली वोल्ट है और टोटल रीडिंग्स हो जाएगी 60, और जो म्यू बी है वो हो जाएगा 0.5 मिली वोल्ट अपॉन रूट ऑफ 10। सो अगर आप इस वाले को सोल्व करेंगे तो म्यू ए की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन रूट 60 और म्यू बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 अपॉन 2, नीचे आ जाएगा 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 40। सो विच इज ग्रेटर। सो नीचे जितनी छोटी वैल्यू होगी टोटल वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी। सो म्यू ए इज लेस देन म्यू बी। आई गेट दिस कंप्लीटली। बट जब हम इन दोनों की रीडिंग्स को मिक्स कर देंगे, सो म्यू ए बी की जो वैल्यू होगी विच इज इक्वल टू डेल ए बी, यानी उन दोनों का मिक्स्ड रेजोल्यूशन अपॉन रूट ऑफ टोटल वैल्यूज हो जाएगी 70। सो अब अगर आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, सो मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ। सो अगर आप मैथमेटिकली यू ए बी की वैल्यू निकालेंगे, सो मैथमेटिकली यू ए बी की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ एन ए यू ए का स्क्वायर प्लस एन बी यू बी का स्क्वायर अपॉन एन ए प्लस एन बी का होल स्क्वायर। अगर आप इससे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो मिलेगा म्यू ए बी विच इज लेस देन म्यू ए और विच इज ऑल्सो लेस देन म्यू बी। सो बाय दैट ऑप्शन अगर आप इस वाले से अगर आप चेक करेंगे, सो आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन बी मिल जाएगा। हाउ ऑप्शन बी? आपको जो ऑप्शन बी है वो मैथमेटिकली तो सही है, बट जो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो आंसर है म्यू ए सब में सबसे कम अनसर्टेनिटी होगी, म्यू ए बी में सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी, म्यू बी में सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी। इसका बेसिक लॉजिक ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ेगी, यानी कि एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती है, हम रीडिंग्स जैसे बढ़ाते हैं, रैंडम एरर उतना ही कम होता जाता है। सो रैंडम एरर कम होगा, उस लॉजिक से हमने देख लिया कि जो यू ए है यानी अनसर्टेनिटी इन ए है वो अपने आप ही यू बी से कम हो जाएगी। बट यू ए बी के लिए मैंने जो आंसर चेक किया उस आंसर के अकॉर्डिंग यू ए बी के लिए ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपने यू बी की वैल्यूज को ए में मिक्स किया, ऑल्दो रीडिंग नंबर ऑफ रीडिंग्स बढ़ी है, बट क्योंकि हमने जो वैल्यूज है वो दो अलग अलग टाइप की मिक्स कर दिए,
तो उसकी वजह से जो टोटल एरर होगा वो बढ़ जाएगा। सो दैट्स वाई यू ए बी जो है वो यू ए से ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट आई हैव कैलकुलेटेड देम ऑल मैथमेटिकली। सो मैथमेटिकली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यू ए बी इज ग्रेटर देन यू ए, less than UA which is less than UB. So mathematically answer B is correct, but इन्होंने जो ऑप्शन मारा था ऑप्शन A मानेगा था. So I leave up to you what is correct and what is wrong. I have told you both the approaches. Now let's move to the next question. आप भी इस क्वेश्चन पे सोचना और टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं. So let's move to the next question. This is the trickiest question of today. This was the trickiest question of today. Now we are on the question number 5. Question number 5 में भी जो पहले हम फॉर्मूले यूज कर चुके हैं वही फॉर्मूला यूज होंगे, कोई नई बात नहीं है. सो बाय प्रोपेगेशन ऑफ एरर यू रीड द क्वेश्चन. बाय प्रोपेगेशन ऑफ एरर बाय प्रोपेगेशन ऑफ एरर क्या होगा, हमको ए में एरर फाइंड आउट करना है, तो वो हो जाएगा डेल ए अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल एफ पी अपॉन एफ पी का स्क्वायर प्लस हाफ एम पी अपॉन एम पी का इसका भी आ जाएगा स्क्वायर. नाउ अगर हम आप यहाँ से वैल्यूज पहले निकाल सकते हैं. डेल ए अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू डेल एफ पी अपॉन एफ पी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो सिंपली आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी 15 अपॉन 180. एरर तो 15 है एफ पी में, और तो वैल्यू 180 है का स्क्वायर अपॉन 1/2 इंटू एम पी. एम पी में एरर तो 160 है और टोटल वैल्यू 6400 है, इसका स्क्वायर. हमको सिर्फ डेल ए की वैल्यू पूछ रखी है. रिमेंबर द एरर इन एस्टिमेशन ऑफ ए. सो ये हो जाएगा डेल ए अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन व्हाट विल गेट इज 44, क्योंकि 15 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 64 जहाँ आ जाएगा, और what you will get is again 880. So 6400. now हमको डेल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हो जाएगा a रूट 1 अपॉन 144 प्लस 1 अपॉन 6400. अब a की वैल्यू कैसे आएगी, a की वैल्यू हम सारी वैल्यूज रख के इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो ये हो जाएगा एफ पी रूट ऑफ एम पी, और यहाँ पे आ जाएगा 144 प्लस 6400. सो एम पी की वैल्यू क्या है 6400, और ये इसकी वैल्यू है एफ पी की वैल्यू क्या है 180, और एम पी की वैल्यू क्या है 6400. रूट में वो 80 हो जाएगा. सो लेट मी सॉल्व दिस इन द नेक्स्ट स्टेप. सो एफ पी की क्या वैल्यू है 180, और एम पी रूट ऑफ 6400 हो जाएगा 80, और यहाँ पे अंदर आ जाएगा 144 इंटू 640 अपॉन 6544. सो अगर आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो नीचे 12 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 80. सो 80 से तो 80 कैंसिल हो जाएगा, लेट में ये इससे कैंसिल हो जाएगा. बट अगर आप रिमेनिंग को सॉल्व करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट इज you will get close to the value of 1200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पावर 3/2. 3/2 कहाँ से आया, सो 3/2 आया, 1/2 तो यहाँ से आया पावर, और ए की वैल्यू यहाँ थी तो ए को जैसे इधर भेजा हमने तो ए से आ जाएगा +1.
सो टोटल पावर हो जाएगी 3/2, इसलिए मेगा वोल्ट की पावर 3/2 आ रही है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 1/1200 is correct. Let's move to the next question. So this is the question of today, जो कि लीनियर लीस्ट स्क्वायर फिट से हमको स्लोप की वैल्यू पूछ रखी है. सो व्हाट वी आर गिवन इज r इज इक्वल टू हो जाएगा mt प्लस सी. आई हैव रिटन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. हमको स्लोप की वैल्यू निकालनी है. सो स्लोप की वैल्यू हो जाएगी. सो ये बहुत लंबा फॉर्मूला है. इफ यू वांट यू कैन रिमेंबर दिस. I इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 to n, देन यहाँ आ जाएगा TI/RI माइनस समेशन I से n, अगेन 1 से ऑब्वियसली TI और समेशन RI अपॉन n समेशन TI का स्क्वायर माइनस समेशन. आपके पास एग्जाम में टाइम हो तो ही ये क्वेश्चन करने का है, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी करने का नहीं है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n. सिमिलरली सी की भी वैल्यू होती है. सो अगर आप यहाँ पे समेशन TI फाइंड आउट करेंगे, यानी कि सारे TI की वैल्यूज को सम करेंगे, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8, तो ये हो जाएगी वैल्यू 26 है. यस. और अगर आप सारे RI की वैल्यूज को सम करेंगे तो हो जाएगा 90 + 105 + 110 + 115. सो अगर हम 400 माने तो 400 तो आएगा ही वैल्यू, और 10 या ये वाले से चला जाएगा तो ये आ जाएगा 420. नाउ सिमिलरली अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, सारी जो m के अंदर वैल्यूज चाहिए मैं वो सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर रहा हूँ. TI का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 + 2 20, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36. सो ये 46 56, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64. सो 56 + 64 is equal to again 120. Now we'll sum here. TI/RI is equal to 2 into 90 plus 4 into 105 plus 6 into 110 plus 8 into 115. सो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी टफ, सो मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ, 2180. सो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू, क्योंकि टोटल वैल्यूज n इज इक्वल टू 4 है, सो 4 इंटू TI/RI. सो TI/RI की वैल्यू हमने लेटेस्ट फाइंड करी 2180 माइनस टोटल नंबर ऑफ TI, यानी TI का सम. यार ये दे रखा है तो ये हो जाएगा 20, और RI का भी सम, सो वो हो जाएगा 420 डिवाइडेड बाय 4 इंटू अगेन n दे रखा है TI का स्क्वायर उन सारों का सम. सो TI का स्क्वायर उन सारों का सम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 120 माइनस 20 का स्क्वायर. सो इसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 जो 32 का 2 हासिल का 3, 4 और 3 7, और यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4800. यस. नीचे आ जाएगा 1248, और यहाँ आ जाएगा 400. सो यहाँ नीचे तो आ जाएगा 80, ऊपर क्या बच जाएगा 0 से 0 गया नीचे 2 बच जाएगा, एक तो एक 3 बच जाएगा, और बस, और एक 0. यस, 0 भी तो आएगा स्टार्टिंग वाला, ये वाला 0, 0 में से 0 गया तो. सो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा. सो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू आ जाएगा 4. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
So this question is again a simple question, but अगर आपको बेसिक प्रोपेगेशन ऑफ अनसर्टेनिटीज वाला प्रिंसिपल नहीं ध्यान है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे. सो लेट मी डू दिस. डेल जेड आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा. डेल जेड रूट ऑफ सी एक्स डेल एक्स का स्क्वायर, जो भी सी एक्स उसके साथ में है. और लेट मी राइट इट डायरेक्टली, नाउ यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. यह आ जाएगा -2 डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 3 डेल वाई का स्क्वायर. डेल जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू डेल एक्स का स्क्वायर. डेल एक्स की वैल्यू क्या है, डेल एक्स की वैल्यू ये वाली कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू डेल एक्स की है. सो 0.05 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9. डेल वाई की वैल्यू क्या है 0.02. सो 0.02 का स्क्वायर. सो डेल जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 0.0000 नहीं आएगा, 25 आ जाएगा डायरेक्ट, प्लस 9 इंटू ये हो जाएगा 0.0004. सो डेल जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम दोनों को सम करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा. यस, सो ये आ जाएगा 0.0100 प्लस 36 0.0036 विच इज इक्वल टू 0.0136. अगर आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे तो पहले तो मैं पॉइंट हटा के नीचे 1000 तो 10 की पावर -2 तो बाहर ले लेता हूँ, विच विल बी यूज टू कैलकुलेट द परसेंटेज. सो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 0.1166. यू कैन फाइंड इट योर सेल्फ. मैंने तो ऐसे तुक्का मारा कि 121 से ज़्यादा है तो 11 से ज़्यादा आएगा, पर 144 से कम है तो 12 से तो कम ही आएगा, और 136 है तो 144 से और 121 के बिल्कुल बीच में तो 11.5 के समथिंग होनी चाहिए, पर बिल्कुल बीच वाली वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा है तो 11.6. दैट्स वाई मैंने 166 मतलब 1166 ले लिया. नाउ इसको अगर आप रफली इक्वल करेंगे तो आ जाएगा 12% और 0. कितना आ जाएगा 12. हाँ, मैंने वो दोनों बात कर दी है तो यहाँ पे इसको माइनस करना पड़ेगा. होप यू गेट इट. दोनों ही बातें कर दी मैंने, डेसिमल के साथ में ही सोल्व कर दिया इसको. सो 12% इज द करेक्ट आंसर और 0.22. लेट्स मूव टू द फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे. सो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है. इसमें डाटा दे रखा है, कुछ तो आई वी कर्व दे रखा है और स्लोप में एरर दे रखा है. सो मैं अगर लेटेस्ट टेक हम हमारा नोमेनक्लेचर लेते हैं मीन्स स्लोप. सो डेल एम की वैल्यू दे रखी है 1.255 इंटू 10⁻³ अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड उसमें कितना एरर आएगा वो. सो वी नो दैट बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन आई. V की वैल्यू और आई आर की वैल्यू देखिए, V की वैल्यू 25 है तो आई की वैल्यू 1 है तो आ जाएगा 25/1, आ जाएगा 25. सो बी हो सकता है, डी हो सकता है, सी हो सकता है, ए तो हो ही नहीं सकता. ए में जो 0.8 दे रखा है मतलब कि करेक्ट आंसर में 0.8 होना चाहिए, तो बी ऑप्शन भी हो सकता है. लेट्स चेक. अब हमको फाइंड आउट करना है एरर. सो एरर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेट मी राइट द फॉर्मूला फॉर स्लोप. हो जाएगा आई अपॉन बी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन आर. यस, बी अपॉन आई. हाँ, अब हमको एम और आर में रिलेशन तो मिल गया. हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट तो आर की टर्म्स में करना है, तो मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ. ये हो जाएगा 1 अपॉन एम. हमको आर में क्या फाइंड आउट करना है, हमको आर में एरर फाइंड आउट करना है. सो यूजिंग प्रोपेगेशन ऑफ एरर,
प्रोपेगेशन ऑफ एरर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर का प्रिंसिपल यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एम शुड बी इक्वल टू डी आर अपॉन डी एम, और डेल एम अपन को होता है, अपन को डेल आर चाहिए, तो ये हो जाएगा डी एम, आर की वैल्यू क्या है 1 अपॉन एम, और डेल एम की वैल्यू क्या दे रखी है 1.255 इंटू 10 की पावर माइनस 3। स्लोप की वैल्यू भी रखनी है, आर की जो भी वैल्यू है वही 1 अपॉन एम की वैल्यू आ जाएगी। सो इसका सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन एम स्क्वायर। मैं इसको एक बार के लिए सिर्फ जो वैल्यू है वही रहने देता हूँ। सो अगर हम इसको सिर्फ वैल्यू क्या है, डेल एम को डेल एम ही लिख देता है, 1 अपॉन एम स्क्वायर आ जाएगा, यह आ जाएगा डेल ऑफ एम। सो अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो वो क्या आनी चाहिए, एम इज इक्वल टू 1 अपॉन आर है, तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर डेल ऑफ एम। आर की वैल्यू क्या लिख लेंगे 25 का स्क्वायर, तो ये अगर डेल आर को मैं पॉजिटिव लेता हूँ क्योंकि एरर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। सो अगर मैं इसको पॉजिटिव लूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई एम टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। सो आर यानी 25 का स्क्वायर, और डेल एम की वैल्यू हमको क्या दे रही है 1.255 इनकी 10 की पावर माइनस 3। ये हो जाएगा 625 मल्टीप्लाइड बाय 1.255 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 की पावर माइनस 3 का 1000 नीचे ले लेते हैं, और 72 यानी 7000 अप्रोक्सीमेटली कुछ आना चाहिए, और 2525 दे रखा है, तो मैं इसको कोई 1 मिनट कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आएगा 784.375। यस, अगर आप इसको अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे तो आ जाएगा 0.8। सो हमारा डेल आर इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल आर इज इक्वल टू आ गया 0.8। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट एज आई वाज स्पेक्यूलेटिंग। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस, और आप इसी चैनल पे दूसरी प्लेलिस्ट भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं जिनमें के अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रखे, और आपको कोई भी सजेशन हो वीडियोस के रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके उनको बता सकते हैं। थैंक यू।